सारसारं सर्वगुणान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं द्विजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावरण्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। One page 49 এই বুক না Art of Dying বাংলায় 40 সরি ইংলিশে 40 English এই বুক এই ভিতরে 46 ইংলিশ বাংলা Art of Dying আলোচনা করছি। ঠিক আছে, তাহলে শুরু করুন। কে শুরু করবে? সন্দীপ। হ্যাঁ, 46 না পুরোটা হয়নি, মাঝখানে আছে। একদম শেষে জন্ম এবং মৃত্যু সম্বন্ধে একদম শেষে জন্ম এবং মৃত্যু সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই পশু এবং মানুষের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে থাকে। একজন যথার্থ মানুষ তার নিজের সম্বন্ধে এবং তার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। সে প্রশ্ন করে কোথা থেকে সে এই জীবনে এলো এবং মৃত্যুর পর সে কোথায় যাবে। সে প্রশ্ন করে যদিও সে দুঃখ চায় না, তবুও কেন সে তিতাব দুঃখের দ্বারা জর্জরিত হচ্ছে। জীবনের শুরু থেকে মানুষ তার জীবনের কত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করে,
কিন্তু জীবনের যথার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে সে কখনোই কোনো প্রশ্ন করে না। এটাই হচ্ছে পাশবিকতা। চারটি পশুভিত্তিক মানুষের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। সেই ব্যাপারে মানুষ এবং পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। প্রতিটি জীবী আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনকে কেন্দ্র করে জীবনযাপন করে, কিন্তু মনুষ্য জীবনই কেবল নিত্য অস্তিত্ব এবং চিন্ময় সত্তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়। তাই মনুষ্য জীবনকে উদ্দেশ্য হচ্ছে তার নিত্য অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। বেদান্ত সূত্র উপদেশ দিচ্ছে যে এই অনুসন্ধান এখনই করতে হবে, তা না হলে কখনোই তা সম্ভব হবে না। মনুষ্য জীবন পাওয়া সত্ত্বেও আমরা যদি আমাদের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করি, তাহলে প্রকৃত নিয়মে আমাদের অবশ্যই আবার পশু জীবনে প্রাপ্ত হতে হবে। তখন আর আমরা প্রশ্ন করতে পারবো না, আমি কে, আমি কোথা থেকে এলাম, আমি কেন এখানে কষ্ট পাচ্ছি। তাই জড় জাগতিক বিষয়ে অনেক মুখ্য লোকেদের যথেষ্ট উন্নত বলে মনে হলেও, অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনকে ইত্যাদি বিষয় তাদেরকে উন্নত বলে মনে হলেও প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যুর হাত থেকে তারা কখনোই নিস্তার পেতে পারে না। জড়া প্রকৃতি সত্য, রজ এবং তম, এই তিনটি গুণের দ্বারা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। যারা সত্যগুণে জীবনযাপন করে তারা উচ্চতর ধার্মিক জীবন প্রাপ্ত হয়। যারা রাজযোগের গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয় জীবনযাপন করে, আর তারা জড় জগতে এখানে রয়েছে সেখানে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর যারা তামসিক জীবনে যাপন করে তারা অবশ্যই অধঃপতিত হয়ে নিম্নস্তর জীবন লাভ করে। এটার ভিতরে কৃষ্ণ বলেছেন, ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থ মধ্যে তিষ্ঠতি রাজস জগন্যং গুণবৃত্তিস্থ অধো গচ্ছন্তি তামস। जो ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্ব, যে সত্ত্বগুণে আছে উনি ঊর্ধ্বং মানে উপরে যায়, উপরে মানে স্বর্গলোক, এখান থেকে ভালো জায়গাতে যায়। যে সত্যগুণে থাকে এখান থেকে ভালো জায়গাতে যায়। মধ্যে তিষ্ঠতি রাজস, মধ্যে তিষ্ঠতি মানে এটা মর্ত্যলোক যা আছে পৃথিবী, টোটাল এই ব্রহ্মাণ্ডে 14 ভুবন আছে। পৃথিবী উপর দিকে তো 14 ভুবন মধ্যে পৃথিবী তো 7 নম্বর আছে, মাঝখানে আছে। মধ্যে তিষ্ঠতি রাজস, যে রজগুণে আছে থাকে মানে এই মর্ত্যলোকে পৃথিবীতে আবার জন্ম মানুষ পেতে পারে, এই জায়গাতে থাকে। অধো গচ্ছন্তি তামস, অধো গচ্ছন্তি মানে অধো মানে লোয়ার, মানে গতি, মানে এতে নিম্ন লোক চলে যাবে, নাহলে নিম্ন জাতির প্রাণী, মানে যেরকম বলেছে না লোয়ার স্পিসিস অফ লাইফ, মানে কুকুর, বিড়াল এরকম পশু পাখি সেরই লাভ করতে পারে, যে তমগুণে আছে। তমগুণ মানে অজ্ঞানতা, মানে কোনো জ্ঞান নেই, বুঝেছি না? তো তমগুণ মানে অজ্ঞানতা। এরকম যদি কেউ ব্যক্তি মানুষ জন্ম নিয়েছে কিন্তু উনি অজ্ঞানী, জানি না মৃত্যু করে কী হবে, কোথায় যাবে, আর এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা উনি করছেন। এরকম পশু কোনো সময় জিজ্ঞাসা করে না, পশু কোনো সময় জিজ্ঞাসা করে না কি আমি কেন জন্মগ্রহণ করেছিলাম, কেন আমি এরকম দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে, এই মৃত্যু করে কখন যাবো। উনি তো অজ্ঞানী আছে, আর উনি ওইরকম জিজ্ঞাসা করে না, যে তমগুণে আছে উনি জিজ্ঞাসা করেছেন। তো সেই জন্য এইরকম অজ্ঞানে আছে, ওইরকম থাকে, আর ওইরকম থাকতে চায়, আর কোনো আসক্তি নেই ওনার এরকম জিনিস ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা। মানুষ জীবন মানে আতত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, আতত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা মানে ব্রহ্ম ভগবানের আধ্যাত্মিক জিনিসে জিজ্ঞাসা করা দরকার। আতত, আতত মানে দেরফোর, সেজন্য মানে ও যত পর্যন্ত মানুষ জিজ্ঞাসা আধ্যাত্মিক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা শুরু করেন না, তত পর্যন্ত উনি পশু স্তরে আছে। যেই মুহূর্তে উনি জিজ্ঞাসা শুরু করেছেন মানে ওনার মানুষ জীবন প্রকৃত রূপে শুরু
হয়েছে। হরে কৃষ্ণ। কাউন্সিলর আমাদের স্টুডেন্টদের काउंसलिंग करें। अच्छा अच्छा ओके। कोई मिस्टेक करता है ना उसको काउंसलिंग करके फिर सटीक रास्ता में लगता है। ये स्टूडेंट काउंसलर। हाँ काउंसलर सर अपना स्कूल है। हाँ अपॉइंटमेंट ये सर आ रहा है भुवनेश्वर से आया है। अच्छा ये बीएड कर रहा है फिर हम लोग को टीचिंग कोर्स होता है ओके। वो हमारा स्कूल में एक्सपीरियंस गैदर कर रहा अच्छा है टीचर और ये मैथ टीचर है सर। सामने के बैठे ठीक है रास्ता थोड़ा भूल गया था ये लोग को। अच्छा अच्छा इसलिए थोड़ा देरी हो गई। ओके ঠিক আছে। और इंग्लिश में कर रहे हैं। ঠিক আছে তাহলে ओके आप तीनों बांग्ला नहीं है। अरे ওখানে তো লাইট আছে ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা ওখানে লাইট বন্ধ করে কেন আসবে ঠিক। ওকে ওকে ফাইন নো প্রবলেম। ওকে তাহলে আপনি বাঙালি আমি বাঙালি স্যার বাঙালি काउंसलर से आपने मुझे ना इंग्लिश हिंदी ओके। फिर आप कैसे काउंसलिंग करते इधर। अच्छा इधर सब जगह से इधर तो बांग्ला स्टूडेंट तो सब बांग्ला रहेगा ना। स्टूडेंट বাঙালি हिंदी सब्जेक्ट तो আছে हर भाषा समझते हैं और सब स्टूडेंट समझते हैं इंग्लिश में हिंदी समझते हैं सब स्टूडेंट समझते हैं। तो ठीक है ओके कोई असुविधा नहीं। ओके हम भी बंगाली नहीं है सब भारतीय है ना सब हिंदी समझते हैं किंतु कुछ लोग এখানে কেউ হিন্দি বুঝে না। सब हिंदी बुझे ओ सब लोग हिंदी समझते हैं। अच्छा तो ठीक है कोई असुविधा नहीं। ओके तो नेक्स्ट अपनी ना ठीक है बोलो। আধুনিক সভ্যতার পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তা কোনো শিক্ষাই প্রদান করে না। পশুর মতো এই সমাজে মানুষরাও জানে না যে প্রকৃতির নিয়মে অচিরেই তাদের মৃত্যু হবে। এক মুঠো সবুজ ঘাস বা তথাকথিত সুখময় জীবন পেয়ে তারা কসাইখানার মৃত্যুর প্রতীক্ষামান পাঠার মতো নির্বিকার। আধুনিক মানুষের এই দুর্দশার কথা বিবেচনা করেই আমরা ভগবত দর্শনের মাধ্যমে মানুষকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি। এই পন্থাটি অলিক নয়। কলহের যুগ, এই যুগে মিথ্যার আবরণ উন্মোচন করে যদি আবার সত্য যুগের সেবা সম্ভব হয়, তাহলে ভগবত দর্শনের এই বাণীর মাধ্যমেই তার সূচনা হচ্ছে। ओके तो मैंने এরকম कोई जिज्ञासा नहीं कर रहा है। अच्छा मुझे ये बैक टू गॉड है क्या? बैक टू गॉड माने भगवान के पास वापस जाना। बैक टू गॉड वापस जाना। हम उधर से आए हैं फिर वापस फिर जाना। गॉड हेड माने भगवान जैसे रहता हेड रहता ना आपका टीचर में भी हेड टीचर रहता है, ऐसे भगवान में जो टॉप है कृष्ण है उनके पास वापस जाना। तो ये एक्चुअली ये है जीवन का उद्देश्य। दिस इज द पार्पस ऑफ लाइफ। যেরকম এখানে বলেছেন
কারেন্ট মডার্ন এডুকেশনে এই জিনিস নেই। জীবনের উদ্দেশ্য কি, মূল্য কি, ভ্যালু কি, এটা এই জিনিসে কোনো সাবজেক্ট নেই। এখানে अभी जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको बोलते हैं स्लॉटर हाउस। सच तुलना करा আছে কেন কেন जैसे এখানে आप गोट ছাগল ना, गोट को आप देखते हैं वो घास खा रहे हैं। स्लॉटर हाउस में लाइन से गोट है, वो अपना घास खा रहा है, वो देख रहा है कि उसके पास में गोट को लेके जा रहे हैं कसाई, उसको मार दे रहे हैं, किंतु वो कोई टेंशन नहीं है, हम अपना खाएं घास खा रहे हैं, किंतु नेक्स्ट उसको भी लेके जाएंगे, है ना। तो वो इंक्वायरी नहीं कर रहे, जिज्ञासा कुछ नहीं, अरे उनको चला लेके गया, हमको भी लेके जाएगा, हमको तो ऐसा मरना नहीं चाहते हैं, हम क्यों मरे, हमको तो अच्छा नहीं लगता है, हम क्यों मरे। तो प्रश्न वो नहीं करेगा क्योंकि वो चावल है, অত বুদ্ধি নেই ওনার, উतना বুদ্ধি নেই। কিন্তু মানুষ সেই জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজকে যে সময় 100 প্রশ্ন করেছেন, আমি বলেছিলাম আগে 100 प्रश्न करेছেন कि सबसे आश्चर्यजनक चीज़ क्या है, इस जगत में आश्चर्यजनक चीज़ क्या है। तो সেই জন্য উনি বলেছেন কি अहनि हनि भूतानि गच्छन्ते यमालयं शेष स्थावरमिच्छन्ति। तो वो बोल रहे कि डेली हम देख रहे हैं कि सब लोग देख रहे हैं कि अनेक कोई ना कोई मर रहा है, ये हम लोग जा रहे हैं, मगर जो इधर है वो लोग सोच रहे हैं हम इधर ही रहेगा, हम लोग कुछ नहीं, उसके बारे में कोई चिंता नहीं कर। तो ये विषय के बारे में व्यक्ति को, मनुष्य को जिज्ञासा करना चाहिए। व्हाट इज़ लाइफ, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन के पहले हम क्या है, जीवन की मृत्यु के बाद में क्या है, ये चीज़ के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। अगर जिज्ञासा नहीं करता है तो फिर वो पशु के समान है। तो सोच रहे हैं हम अच्छा चल रहा है, जीवन अच्छा चल रहा है, एक दिन तो मृत्यु आ जाएगा। आज हम सकाल में क्लास ले रहे थे, अपनी चीज़ें ना, अपनी नहीं, कोई एक जन बोले थे ना, वही प्रवीण को बोले थे ना, प्रभु हमारा क्लास जो संडे प्रभुपाल लीलामी क्लास है जो आशे एवरी क्लास उन्हीं एक कुछ दिन आगे उनका मृत्यु हो गया। तो हम तो उनको जानते नहीं थे, पहचान नहीं पाए, बोले कोई किशोर पाल है। तो हम अच्छा मैंने बहुत वयस्क होता क्या बोले, ना वयस्क नहीं, ওনার 8 বছর বাচ্চা আছে, 5 বছর बच्चा है, तो मतलब उतना वयस्क नहीं है, तो नॉर्मल मिडिल एज में, तो मिडिल एज में हठाৎ করে কেন মৃত্যু হয়েছে, বলছে ওনার স্ট্রোক হয়ে গেছে, ইমিডিয়েট ब्रेन स्ट्रोक है, इमीडिएट डेथ हो गई। तो सब भाव से सब लोग सोच रहे हैं कि हमारा चिंता क्या है, ये सब मृत्यु डेथ इसके बारे में क्यों भगवान ये आलोचना कर रहे हैं, तो बाद में। और लाइफ, वैल्यू ऑफ लाइफ क्या लेना देना है। आज के एजुकेशन सिस्टम है कि आप कैसे पढ़ाई करके जॉब, अच्छा जॉब मिल सकता है, क्या पढ़ने से, कैसे मार्क्स लाने से, कैसे पास करने से इंटरव्यू आप अच्छा जॉब लेके आ सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो आपका अच्छा लाइफ रहेगा। ये चीज़ सिखाते हैं और ये चीज़ के लिए जा रहे हैं, बट एक्चुअली एजुकेशन वो कंप्लीट नहीं है। तो जीवन का वैल्यू नहीं सिखाएंगे बचपन से। अभी रिसेंटली और एक भक्ति शो बंद हो गया हमारा, फुलिया में एक भक्ति शो स्टॉप हो गया, एक से क्लास चलता है, जिसमें उधर का जो होस्ट है उनका जो लड़का है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो वो तो क्लास में नहीं आता था,
कभी कभी आता था शायद। तो वो लड़का बहुत एडिक्ट था गेम खेलने में। तो उनका माँ से झगड़ा हो गया कुछ, और वो माँ देने रहे मोबाइल कुछ, तो इतना गुस्सा हो गया वो जाके जो रेल रहता ना चलती गाड़ी, उसके सामने जाके उठ के सुसाइड कर लिया। ऐसा है। तो जीवन का वैल्यू समझा नहीं वो सोच रहे गेम खेलने जीवन का उद्देश्य है। तो वो सोच रहे हैं, मैं और एक पहले भी बोला था ना ये चीज़, और एक भी हमारे उनका भी बेटा हर समय गेम खेलते रहते हैं। उनके पिताजी बोला रहे पढ़ाई नहीं करेगा, जॉब नहीं मिलेगा तुमको, बोला तो हम गेम खेल के पैसा कमा लेंगे, हम जीवन चला लेंगे, उसमें भी पैसा इनकम हो जाएगा, पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली पढ़ाई जो है सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो व्यवसाय करता है। हमारा बहुत सारा फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज में, वो तो फेल हो गया और उनको कोई टेंशन नहीं है पास होने का भी, क्योंकि उनका पिताजी का बड़ा इंडस्ट्री है करोड़ों का, ठीक है, उनका करोड़ों का बिजनेस होता है। तो उनको पास होना है कोई कंपलसरी नहीं, उनको तो फिक्स है, उनका पिताजी के बिजनेस उनको संभालना है। तो एक तो पढ़ रहा है, ठीक है, चल रहा है, तो वो फेल हो गया, फिर भी वो अपना पिताजी का बड़ा इंडस्ट्री बाद में वही देख रहा था, चला रहा है। अभी लंदन में गया, उधर सुपरमार्केट खोला। लास्ट टाइम मुझे कहाँ पे, लंदन में हो, क्या कर रहे, उधर बिजनेस कर लो। जीवन क्या है पता नहीं। तो मैं जब भक्ति में आया तो उसको वो बोला, अरे अभी क्या भक्ति कर रहे हो, जब बुढ़े हो जाएंगे तब कर लेगा, अभी ये उम्र तो भी है भक्ति करने में। तो उनको बोला ठीक है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो वो लंदन में भी जाके कर क्या रहे, कोई उधर जाके भी सुपर मार्केट खोले। अरे क्या इधर बिजनेस करता था पहले, अब उधर जाके बिजनेस करेगा, तो बहुत उन्नति कर लिया। हाँ? लोग को पता नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है ना। तो जीवन का उद्देश्य सिखाना इम्पोर्टेंट है। जीवन, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? हमको मानव जीवन का उद्देश्य हमको शुद्ध होके फिर हमको भगवत धाम वापस जाना है। तो भगवत धाम जहाँ पे भगवान रहते हैं वो हमारा असली घर है, वहाँ पे वापस वही जा सकता है जो शुद्ध हो सके। ये हमारे जीवन को शुद्ध करना, ये उद्देश्य है। भगवत धाम जाना तो लक्ष्य है, बट भगवत धाम कैसे जाएंगे हम? जब हमारा मनुष्य, हमारा जीवन शुद्ध होगा, हमारा हृदय में बहुत सारे कल्मश है, अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब चीज़ से मुक्त होना है। जब ये सब चीज़ से मुक्त हो जाएंगे तो तब हमको एंट्री मिलेगा भगवत धाम में जाने का। ऐसे नहीं कि ऐसे चला जाएंगे। तो ये सब चीज़ों से शुद्ध होने के लिए हम लोग का इधर कुछ शास्त्र में दिया हुआ है, नियम दिया हुआ है, लॉस दिया है नेचर में। तो लॉस है, भगवान ने कुछ लॉस दिया है आपको, ये लॉस को फॉलो करना है, सो दैट हम लोग को ये जो अनर्थ से मुक्त होने के लिए, राइट। जैसे अभी नेक्स्ट वही बताएंगे, ये डिफरेंस क्या है। एक व्यक्ति जो भगवान का नियम पालन करके जीवन जीता है और कोई व्यक्ति कोई केयर नहीं करता है। गीता में क्या बोला, हमको क्या लेना देना, हमको एंजॉय करना है, हमारा जैसे इच्छा वैसा हम जिएंगे। तो उसका डिफरेंस है लाइफ में। तो आजकल मीनिंग ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं सिखाते, तो फिर वो व्यक्ति अल्टीमेटली पशु से ज़्यादा बेटर नहीं करता है। वो पशु जैसे जो चीज़ कर रहा है वो एक मनुष्य भी कर रहा है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, वे मैथुन। तो नेक्स्ट पढ़िए और अच्छा से क्लियर होगा। According to Sri Sukveda Goswami, the real fact is that Dharmadehi or Dharmadehi, yes, Dharmadehi. or a person who has tied himself like a goat meant for slaughter
in the business of family, society, community, nation, or humanity at large in regard to the problems and necessities of animal life, namely eating, sleeping, fearing, and mating, and also who has no knowledge of the transcendence or no better than animal. He may have inquired about physical, political, economic, cultural, education, or similar other matters of temporary material concern, but he has not inquired about the principle of transcendental life. He should be regarded as the blind man driven ahead by uncontrolled senses and about to fall into the ditch. That is the description of Dharmadev. तो इनको बोलते हैं शास्त्र में, शुभदेव गोस्वामी बोलते हैं गृहमेधी। ठीक है, दो लोग हैं, दो वैरायटी है, एक है गृहमेधी और एक है गृहस्थ आश्रम। मतलब जो व्यक्ति फैमिली मैन, उसी को बोल रहे हैं, सन्यासी को नहीं बोल रहे, फैमिली मैन को दो वैरायटी है। गृह मने घर में जो रहता है, जो गृहस्थ आश्रम, आश्रम मने किछु शास्त्र भगवान आईनी नियम अनुसार जीवन यापन करे। और जो गृहमेधी मने वो कोई जेरकम पशु ओनार कोनो रूल्स रेगुलेशन है, ওইরকম কোনো রুলস কোনো নিয়ম পালন করে না। তো এইরকম যদি ডিফারেন্স আছে, তো এই গৃহমেধী ব্যক্তি যে আছে উনি কোনো সময় এই জিজ্ঞাসা করে না, ইনকোয়ারি করে না চিন্ময় জীবনে, আধ্যাত্মিক জীবন, ট্রান্সেন্ডেন্টাল লাইফ, মানে কেন আমি এরকম মৃত্যু, আমার কেন এই দুঃখ, কেন এরকম কষ্ট আমাকে পেতে হবে, কেউ কিছু প্রশ্ন করে না। मृत्यु क्यों हो गए, क्यों हमारा मृत्यु होता है, ये प्रश्न करे ना। ही इज इंटरेस्टेड ओनली अभी खाना पीना चल रहा है, हमारा एंजॉयमेंट चल रहा है, बस उसके लिए जो करना है वही करेंगे। उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और ये मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएगा, ये चीज़ के बारे में वो आलोचना चिंता नहीं करेंगे। तो फिर गृहस्थ क्या है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं। स्वर्णद्वीप अनेक दिन हो रहे हैं ऐसे ना, ठीक है, एग्जाम ओके पढ़िए। The opposite of the Grihamendi, however, is the Grihastha. The Grihastha ashrama or the shelter of the spiritual family life is as good as the life of a sannyasi, a member of the renounced order, regardless of whether one is a householder or a renunciate. The important point is that of relevant inquiries. A sannyasi is bogus if not interested in relevant inquiries, and a grihastha or a householder is bona fide if he is inclined to put forward such inquiries. The grihamedi, however, is simply interested in the animal necessities of life. By the laws of nature, the grihamedi's life is full of calamities, whereas the life of a grihastha is full of happiness. But in the modern human civilization, the grihamedis are posing as the grihasthas. We should therefore know who is what. A grihamedi's life is full of vices because he does not know how to live a family life. He does not know that beyond his control is a power who supervises and controls his activities, and he has no conception of his future life. The grihamedi is blind to his future and has no aptitude for making relevant inquiries. His only qualification that he is bound by the shackles of attachment to the false things he has contacted in his temporary existence. Right? Hare Krishna. तो यहाँ पे जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ मतलब यहाँ पे प्रभुपाद बोला ऐसा नहीं कि कोई सन्यासी है तो वही स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर सकता है, ऐसा नहीं। कोई फैमिली में भी है वो भी स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर सकता है, और कोई सन्यासी होकर भी अगर स्पिरिचुअल इंक्वायरी नहीं करता है, रिलेवेंट इंक्वायरीज, तो सन्यासी है, ड्रेस है सन्यासी का, मगर वो भगवान का या मृत्यु के बाद में आध्यात्मिक जीवन के बारे में कोई आलोचना चर्चा नहीं है उनका, उसके बारे में वो जिज्ञासा नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो बोगस सन्यासी।
तो स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्टेड रहना ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई फैमिली में स्पिरिचुअली इंटरेस्टेड है और स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना चाहता है तो उनको गृहस्थ बोलते हैं। अगर कोई उसको कुछ स्पिरिचुअल लाइफ या स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, भगवान क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको बस एक पशु के जैसे जीना है, बेसिक इंस्टिंक्ट्स को फुलफिल करने के लिए जीना चाहता है और वही उनका जीवन का उद्देश्य है और दूसरा कुछ नहीं। तो फिर वो गृहमेधी हो जाता है। तो ये लोग क्या आपको क्लैरिफाई करने के लिए और एक्सप्लेन कर रहे हैं गृहमेधी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो পড়তে পারে আপনি পড়ুন। রাত্রিবেলা গৃহমেথী যারা ঘুমিয়ে তাদের অতি মূল্যবান সময় অপচয় করে অথবা সিনেমা, নাইট ক্লাব এবং যে কোনো মদ ও মেয়ে মানুষের চলাচলে সেই জুয়া আড্ডায় গিয়ে তাদের বিভিন্ন রকমের যৌন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে আর বিভিন্ন বেলায় তারা অর্থ সঞ্চয়ের প্রয়াসে তাদের সময় অপচয় করে। আর যদি তাদের অনেক অর্থ থাকে তাহলে তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য বা পরিবারের সদস্যদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সেই টাকা খরচ করে তারা তাদের সময় অপচয় করে। তাদের আর্থিক উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনের মান এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইভাবে তাদের খরচের কোনো সীমা থাকে না এবং তারা কখনো সন্তুষ্ট হতে পারে না। আর এই অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতার কোনো সীমা নেই এবং তাই আজকের মানব সমাজে কোথাও শান্তি নেই। ओके, तो ये है गृहमेधी का लाइफ स्टाइल। ऐसे देखेंगे तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही लाइफ स्टाइल है ना। तो हम देख रहे हैं बहुत लोगों को भी, कभी कभी लोग बोलते हैं अभी तो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो एक अच्छा फैमिली है, उनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, खुद का घर है, सफिशिएंट इनकम हो रहा है, पर वो संतुष्ट नहीं है। वो देखते हैं कि हमको और इससे भी बड़ा बंगला चाहिए। तो देखा अभी तो बिजनेस से हो नहीं रहा है, तो उसके बाद उनका बेटा भी बड़ा हो गया, अभी जॉब लग गया उनका। तो जैसे जॉब लग गया, अच्छा कितना एक सैलरी 1 लाख रुपये इनकम है, ठीक है। तो जैसे जॉब लग गया कुछ दिन में उन्होंने क्या किया, एक बड़ा घर ले लिया। और वो बड़ा घर कितना, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ का घर ले लिया और उसका पास पैसा नहीं है। हाँ, लोन ले लिया। तो मेरे को जब बोला तो उसका तो जीवन बर्बाद हो गया। तो उसका तो अभी तो सारा जीवन वो ही मवाई चुका था, वो सब फंस गया ना। तो मतलब बेचारा वो अभी तो नया उसका यंग लड़का अभी जॉब लगा, उसको क्यों फंसा दिया, उसका माँ फंसा दिया ऐसे। उसको बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं देखा उसका जो पहले घर था वो भी 20 साल पहले खरीदा था उनका पति होम लोन लेके, और अभी उसका खत्म हुआ लोन, अभी जस्ट खत्म हुआ, बस नूतन ले लिया और इससे एक बेच के 30-40 लाख कुछ मिला, तो बाकी 60 लाख है उनका। तो वो लोन ले लिया उसका, क्योंकि 70% कुछ लोन देते हैं, तो बाकी 30% इधर से मिल गया, पूरा बाकी का लोन उस बेटे के ऊपर था। मतलब पति अभी रिटायर हो गया, उसका एज मतलब वो बिजनेस में नहीं चला पाया, वयस हो गया उसका अभी। तो फिर उसके बाद मैं बोला ठीक है, पति तो मैंने और एक ड्यूटी को बोला उनको, ठीक है आपका भी पति तो ठीक है, अभी तो बेटा जॉब कर रहा है, पति तो बिजनेस बंद कर रहा है, बंद कर दिया अभी, तो अभी तो फ्री है, अभी तो भक्ति कर सकता है। अरे कैसे भक्ति कर सकता है, क्या पूरा छाप मेरा एक बेटा ही ले लेगा, वो बाहर जाके तो कुछ जॉब करेगा, तो फिर से बाहर जाके फिर जॉब कर रहे हैं, इतना एज हो गया, उम्र हो गया, दरकार ही नहीं है अभी, अननेसेसरली, आप समझ रहे हैं ना, अननेसेसरली इंक्रीजिंग का बर्डन। है 4 लोग हैं वो लोग, और उसमें तो उनका बेटी वो शादी करके चला जाएगा, वो बेटा शादी करेगा तो बाद में भी 4 लोग रहेंगे। तो इतना ऑलरेडी अच्छा है, उनका फ्लैट था, 2 BHK फ्लैट था, जो सफिशिएंट है उनको। किंतु उन्हें देख रहा है कि
मेरा जो स्टेटस का, मेरा जो सर्किल का लोग, वो तो 1 करोड़ का फ्लैट पे रहता है, मैं 30 लाख का 40 लाख का फ्लैट में रहूँगा और ये इलाका चेंज करना पड़ेगा। वो जो पॉश इलाका है वहाँ पे रहता, उसका रेट ज़्यादा है रहने का, समझ में, उधर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो उधर ही रहना है। क्यों? उनका स्टेटस, उनका सर्कल का लोग उधर में जीता है, तो उनको उधर ही जीना है। और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, पहले उनको पति को फंसाया, उसके बाद उनका बेटे को। तो ये मटेरियल लाइफ ऐसे चलता है, मटेरियल लाइफ। तो अभी भी उनके पास समय नहीं है भक्ति करने के लिए, फिर इतना लोन चुकाना है, तो फिर वो सब व्यस्त है उसमें, कभी समय नहीं होगा। क्योंकि ये मेंटालिटी जब तक चेंज नहीं होगा तब तक समय नहीं मिलेगा। So, इसीलिए बोल रहे ऐसा समय नष्ट कर रहे लोग। प्रॉपर दिख रहे, कोई बोलते हैं क्या है, टाका इनकम नहीं करना है क्या, तो पैसे फ्री में मिलेगा क्या? तो फ्री में नहीं मिलेगा, टाका तो इनकम करना है, बट एक ग्रीड जो है, एक मेंटालिटी जो है, जितना भी हो सेटिस्फाई नहीं होते। और जैसे बोला है ना, इंक्रीज इन मॉनिटरिंग का, ज़्यादा पैसा कमाओ और ज़्यादा खर्च करो, राइट? मैं ये बोला, मेरा फ्रेंड और एक जो मेरे को भक्ति में लेके आया, वो अभी अमेरिका में है, जॉब करता है उधर। वो अभी इंडिया में आके बोला, आपको पता है अमेरिका से इंडिया के लोग धनी हैं, अमेरिका लोग गरीब है। क्यों? अमेरिका तो इन जनरल पॉपुलेशन ज़्यादा जॉब करता है, मगर उसका सैलरी आता है स्टार्टिंग मंथ में, मंथ शेष होने से पहले उसका सैलरी पूरा खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो लास्ट सप्ताह जब आ जाता है एकदम भिखारी हो जाता है, क्योंकि उनका सेविंग का कल्चर नहीं है, सेव करके रखने का कल्चर ये नहीं है, सब खर्च कर देते हैं। और उसके बाद कब फर्स्ट आएगा, कब सैलरी, फिर वेट करते हो। बट इंडियंस का क्या, एक सेविंग का कल्चर है, जिसके वजह से एक्चुअली वो उतना लैविश लाइफ लीड करके पूरा पैसा खर्च करके, दैट इज नॉट देयर गोल, है ना? इसके वजह से वो उतना टेंशन में नहीं रहते जितना अमेरिका का लोग टेंशन में रहते हैं। जैसे मंथ एंड होते ही उनका टेंशन स्टार्ट हो जाता है, अरे फर्स्ट आएगा, बहुत सारा EMI भरना पड़ेगा, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड ये चुकाना पड़ेगा, सब पहले खर्च करके रखा है एडवांस में। तो अभी इंडिया में वो कल्चर आ रहा है, हाँ वेस्टर्न से हम लोग कुछ एक कल्चर लेके आ रहे हैं। हाँ, यही प्रॉब्लम है। हाँ, ये अभी ये मतलब बहुत ज़्यादा हो गया लोगों के जीवन में। हमारे कल्चर को वो लोग अड़प। तो क्या बोलते हैं उसको, द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर इज ऑलवेज ग्रीन। ग्रास, तो इधर घास है, मगर लगता है कि नदी को वो पार जो घास है वो बहुत अच्छा स्पेशल है। तो ऐसे इधर का लोग सोचते हैं उधर अच्छा है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है, ये वेस्टर्न कल्चर या जो भी है संस्कृति से, तो कंज्यूमरिज्म। तो इसलिए अभी इंडिया जो है बहुत बड़ा मार्केट है ना? पहले अभी सब कंपनी इधर ही खोल रहे हैं, तो सब खुश हो जा रहे हैं, मतलब उसको देख रहे हैं कि इधर मार्केट इतना है तो इधर ही रखना अच्छा है कंपनी, इतना हमारा इधर सेल हो रहा है। क्योंकि देखिए इंडिया का पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है अमेरिका से। तो चीज़ क्या बोले तो अभी ऑलरेडी अमेरिका में तो सब लोग कंज्यूमर बन गए, मतलब कोई डिजीज़ हो गया, अभी उसको मार्केट सेचुरेटेड हो गया। इधर अभी धीरे धीरे अभी लोग अभी वो इसमें आ रहे हैं फील्ड में, अभी 100% लोग आया नहीं है इसमें, तो इसलिए उनके लिए मार्केट बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग आस्ते आस्ते जनरेशन बाय जनरेशन धीरे धीरे सब आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो लाइफ स्टाइल है यही लाइफ है जितना। सो दिस इज गृह में। तो हमारा क्या होता था, हमारा जीवन का मेन उद्देश्य शुद्ध पैसा कमा के उसको ख़त्म खर्च करना, ये नहीं था हमारा उद्देश्य जो मनुष्य का। इसके लिए हम पूरा समय नहीं लगाते। तो हमारा जो पहले जो
एग्री बेस्ड है ना, हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर में क्या होता था, वो जो वो रहते थे फार्मर रहते, वो कुछ कुछ समय हार्डवर्क करना पड़ता है। जैसे जिस समय उनको स्टार्ट करना है, प्लाउ करना है फील्ड को, और जो बीज को बोना है वही समय कष्ट करते हैं। तारपर उनका उतना कष्ट नहीं रहता। फिर 3 मास के बाद फसल आएगा, उस समय तक उनको थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, जल देते रहना पड़ेगा, वो कुछ नहीं आया उसको गार्ड करना पड़ेगा बस। बट उतना भारी हार्ड वर्क, उस समय उनको बहुत समय मिलता है। तो गांव में क्या करते थे, अच्छा से भागवत कथा, रामायण, महाभारत, फिर नाटक ड्रामा करते थे, तो लोग सब इसमें व्यस्त रहते थे। राइट, उसके बाद फिर उस समय जो फसल आता है उस समय फिर थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करते थे। तो साल में उनको 6 महीना प्रॉपर परिश्रम करना पड़ता, 6 महीना उनको फ्री टाइम मिलता था भक्ति करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, जिससे वो लोग मूल्य सीखते थे, वैल्यूज सीखते थे, और वो वैल्यूज से वो लोग जीते थे। तो समाज में ना वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग रहता था, समस्या कम रहती थी। जैसे अभी बहुत सारा समस्या, डिवोर्स हो, सुसाइड हो, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हो, ये सब पहले नहीं रहता था, क्योंकि वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग रहता था। और वैल्यू सिस्टम का बेस रहता था शास्त्र। वैल्यू सिस्टम का बेस शास्त्र रहता था। तो हमारा शास्त्र तो ये सिखाता है कि सिर्फ पैसा कमाना और खर्च करना ही उद्देश्य है जीवन का, वो नहीं सिखाते। वो दरकार है, जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, वेटिंग, डिफेंडिंग, ये कॉमन चीज़ है, ये मेन फोकस नहीं है, तो रहेगा ही। आपको जैसे खाने के लिए उनको को नहीं जीना है, और जीने के लिए खाना है, ऐसा राइट। अभी जैसे लोग का कल्चर है कि चलो काम मिलता है खाना, तो दूर दूर जाएगा, घंटों घंटों वेट करेगा, समय लगा देगा उसमें, पैसा भी खर्च करेगा, है ना। तो इस तरह से सिर्फ एंटरटेनमेंट या सेंस एंजॉयमेंट ही जीवन का उद्देश्य नहीं था। तो इसलिए उस समय समाज में, जीवन में ज़्यादा शांति था। आज समाज में शांति नहीं है, लोगों को नींद नहीं आता है, नींद का गोली लेना पड़ता है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया। सो नेक्स्ट मैं एक्चुअली एनीवे, तो नेक्स्ट কীভাবে অর্থ উপার্জন করবে এবং কীভাবে তা ব্যয় করবে, এই সমস্যায় সকলেই হতভম্ব হয়ে পড়ে। তারা জানে না যে প্রকৃতির কৃপার উপরেই সকলকে নির্ভর করতে হয়। যখন উৎপাদনে ঘাটতি পড়ে বা দৈব দুর্যোগ দেখা দেয়, তখন সমস্ত পরিকল্পনাকারী মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা সমস্ত দোষটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির উপর চাপিয়ে দেয়। কিন্তু কীভাবে এবং কার দ্বারা এই প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সেই বিষয়টি তারা খুব সাবধানতার সঙ্গে এড়িয়ে যায়। ভগবদ্গীতা কিন্তু ঘোষণা করছে যে প্রকৃতি পরিচালিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা। ভগবানই প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির নিয়মগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। উচ্চাভিলাষী জড়বাদীরা কখনো কখনো প্রকৃতির নিয়মের কোনো একটি নগণ্য অংশের অনুসন্ধান করে, কিন্তু সেই নিয়মগুলি যে কে বানিয়েছে সেই সম্বন্ধে জানবার কোনো প্রয়াসই তারা করে না। তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বিশ্বাস করে না যে ভগবান আছেন এবং তিনি প্রকৃতির সমস্ত নিয়মগুলি নিয়ন্ত্রণ করছেন। পক্ষান্তর প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলি কীভাবে একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়া করে সেটি নিয়ে একটু গবেষণা করে তারা তাদের পাণ্ডিত্য জাহির করতে চায়, কিন্তু কার পরিচালনায় যে এই প্রতিক্রিয়াগুলি সাধিত হচ্ছে সেই সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধান তারা করে না। এই সম্বন্ধে তাদের কোনো যথার্থ প্রশ্ন বা উত্তর নেই। বেদান্ত সূত্রের দ্বিতীয় সূত্রটি কিন্তু ভগবত তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অপরিহার্য প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে প্রতিপন্ন করেছে যে পরব্রহ্ম বা পরম সত্তা হচ্ছেন তিনি, যার থেকে সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। तो केव बोलते पारे अरे व्हाट इज भगवान आछे ना हमार की दरकार जाना, हमको क्या लेना देना, भगवान है नहीं है, प्रकृति, बट सब लोग ही प्रकृति के ऊपर निर्भर है ना, निर्भर है ना प्रकृति के ऊपर। तो हम लोग सोच रहे हैं जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, बट सब कुछ एक्चुअली एक कंट्रोलर है, कि प्रकृति के ऊपर निर्भर है। आप जैसे कि वैसे चलेंगे, जिएंगे, तो प्रकृति रिएक्ट करेगा, प्रकृति रिएक्ट करेगा। तब लोग सोचते हैं प्रकृति कितना क्रूर है, क्रूएल है। हाँ, किंतु एक्चुअली हमको भगवत गीता से ज्ञान मिलता है। कृष्ण क्या बोलते हैं भगवत गीता, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते।
जो चल अचल, जो चलता है जो नहीं चलता है, सब कुछ ये प्रकृति में मेरे निर्देशे काज करे, अंडर माय कंट्रोल, अंडर माय डायरेक्शन दिस मेटल नेचर इज वर्किंग। तो कृष्ण डायरेक्ट बोलते हैं मेरे भय से, मेरे ऑर्डर से सूर्य उगता है, उदय होता है, सूर्य अस्तम होता है, तो सब कुछ मेरे डायरेक्शन में प्रकृति चल रहा है। लोग इतना फाइंड आउट कर लेते हैं कि प्रकृति में कुछ तो नियम है। जैसे न्यूटन फाइंड आउट किया ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसा अनेक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लॉस है, नेचर में लॉस पता कर लिया, तो जो लॉ फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया, उसको नोबेल प्राइज भी दे दिया। बट लॉ को कौन सृष्टि किया? लॉ हु इज अ लॉ मेकर? आपका स्कूल में, कॉलेज में लॉ है, हाँ ये नियम है ना, सरकार का कुछ नियम है, तो आपका स्कूल में लॉ है, ये रूल है। कुछ भी चीज़ में नियम रहता है ना, क्रिकेट भी खेलता है उसमें भी नियम रहता है, कुछ भी ऐसे कोई भी कैसे भी खेलने से नहीं चलेगा, ये नियम है, इतना ही लोग खेल सकता है, इसे ही आउट हो सकता है ना। हर एक चीज़ में नियम है। जीवन में कोई भी फील्ड ले लो, प्रत्येक फील्ड में कुछ रूल्स है, बट लोग अपना जीवन जब जीवन जीना चाहते हैं उसमें उससे कोई रूल नहीं रहना चाहिए, कोई रूल नहीं, ऐसा नहीं। प्रकृति में भी रूल्स है, एक प्रॉपर वे में जीवन चलना है, कुछ भी काम के लिए प्रॉपरली करना है तो कुछ रूल्स मेंटेन करना होता है, नहीं तो नहीं होगा, है ना। क्रिकेट भी आप नहीं खेल सकते जो अगर एक प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। प्रत्येक क्षेत्र में तो रूल्स से आपको फॉलो करना पड़ता है, तो ऐसे ही जीवन भी हमको जीते, मनुष्य जीवन में भी कुछ रूल्स हमको फॉलो करना पड़ता है। हम केयर नहीं करेंगे तो फिर प्रकृति रिएक्ट करेगा, क्योंकि हम अल्टीमेटली प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट है। हम नहीं बोल सकते हम केयर नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं बोल सकते। हम प्रकृति का सनलाइट हो, वाटर हो, एयर हो, सबसे हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो वी आर डिपेंडेंट। हम फ्री नहीं है वैसा कुछ भी जैसे भी बिहेव करने के लिए, तो कुछ नियम है, प्रकृति का कुछ लॉस है, नियम है, वो चीज़ हमको समझना पड़ेगा, वो शास्त्र में दिया हुआ, ये प्रकृति का नियम है, फॉलो करना है। पहले इसलिए फॉलो करते थे तो सब टाइम पे ये होता था, वृष्टि होता था, तो अच्छा से पृथ्वी जो फसल देता था। ये सब आज मैं सुबह को भागवतम क्लास में वही थोड़ा डिस्कस किया था। तो ये जो नेता के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उस समय तो राजा है, राजा के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि राजा अच्छा से शास्त्र के राजा को मानते थे भगवान के प्रतिनिधि है, हाँ, सो इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, तो उनको बोलते थे राजर्षि। इसलिए भगवद गीता का ज्ञान को कृष्ण ने अर्जुन को दिया, क्योंकि वही कृष्ण अर्जुन को चूज किया। ऑफकोर्स उन्हें भक्त है, उनका भक्त और सखा है, बट ही इज ऑल्सो किंग, क्षत्रिय। और कृष्ण अर्जुन को बोलता है ये जो ज्ञान है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु, राजर्षि जो आज ये ज्ञान को परंपरा में प्राप्त किया है। सकालेन महतो योगो नष्ट परंतपा, किंतु काल के प्रभाव में नष्ट हो गया, इसलिए हम फिर से नूतन ज्ञान नहीं है। पहले में अनेक आगे लाखों बच्चर आगे में सूर्य भगवान विवस्वान को ये ज्ञान दिया था, राइट। सूर्य भगवान विवस्वान को ये ज्ञान दिया था, बट ये परंपरा में आता था ज्ञान, कहीं पे तो ब्रेक हो गया, नष्ट हो गया, लॉस हो गया, तो फिर से मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजर्षि। इसलिए बहुत पहले राजा को राजर्षि बोलते थे, राजा भी है वो, ऋषि भी है, उनको ज्ञान भी, वैदिक ज्ञान भी चाहिए और रहता था। पूरा युद्ध कराया महाभारत का सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति को राजा बनाने के लिए, क्योंकि एक राजा उतना धार्मिक रहना उतना इम्पोर्टेंट है। धार्मिक मतलब भगवान का नियम को पालन करने वाला, भगवान का आदेश को पालन, भगवान का आदेश है भगवद गीता, भगवान दिया है मनुष्य को क्या नियम पालन करना है, कैसे एक लाइफस्टाइल जीना है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बुक है भगवद गीता कि आपको कैसे लाइफस्टाइल जीना है, तो भगवान दिया है। जो उसको मान के चलता है तो उसका जीवन धन्य होता है, सक्सेसफुल होता है। तो वो पहले राजा जो लीडर है, नेता है, उसको जानना चाहिए। तो उनको ये ज्ञान नहीं है तो फिर बाकी प्रजा को क्या वो मार्गदर्शन करेंगे, क्या वो गाइड करेंगे, कैसे वो परिचालना करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसलिए राजा एक धार्मिक होना चाहिए। सिर्फ युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए कृष्ण तो युद्ध कराए, नहीं तो ऐसे दुर्योधन तो बनने के लिए रेडी था, बट वो धार्मिक नहीं था।
यही डिफरेंस था। तो इतना इम्पोर्टेंट है एक धार्मिक व्यक्ति राजा बनना, नेता बनना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जो लिख रहे हैं, तो आजकल का जो भी नेता है अच्छे, बहुत लोग को जानते भी नहीं, मानते भी नहीं। जैसे रिसेंटली कुछ एक घटना हुआ था, लेकिन कहीं पे तो प्रकृति का ऐसे ही वो विपरीत वैकृत का प्रदर्शन हुआ था। कहीं पे तो कुछ लैंडस्लाइड हुआ था हरियाणा में, कहीं तो हिमाचल प्रदेश में। तो IIT मंडी के जो डायरेक्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्लॉटर हाउसेस है जहाँ पे गोरू को, गाय को हत्या कर रहे हैं, पशु को हत्या कर रहे हैं, और बहुत लोग ज़्यादा यहाँ पे एक्सेसिवली मीट खाते हैं। यही कारण से इधर प्रकृति का ये उसका रिएक्शन है प्रकृति का। नेपाल का उसको भी तो बोला था। हाँ, तो इंस्टेंट का भी एक है पेन वेव थ्योरी बोल के इंस्टेंट में दिया है कि जब एनिमल्स को ऐसा अननेसेसरली जो मारते क्रूअली, तो उससे जो पेन आता है उसका इफेक्ट होता है। तो एक्चुअली हम तो शास्त्र से पढ़ते हैं, तो जब अत्याचार बढ़ जाते हैं, असुर लोग बहुत लोग को हिंसा करते हैं, तो वो देख नहीं पाता है पृथ्वी, और पृथ्वी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि हम ये भार को सहन नहीं कर पा रहे, इतना अत्याचार लोग कर रहे हैं, असुर लोग बढ़ गया, तो आप आके उद्धार करिए। फिर भगवान आते है ना, हम परित्राण साधुना विनाशाय से दुष्कृता, तो इसलिए भगवान आते। तो एक कारण है भगवान आने का। तो ये प्रकृति सहन नहीं करता है, तो कोई बहुत ज़्यादा नियम को उल्लंघन करता है तो प्रकृति रिएक्ट करता है। तो जैसे वो जो IIT के डायरेक्टर थे वो इस्कॉन के डिवोटी है, दीक्षित होते हैं। तो वो स्टेटमेंट किए, पहले प्रोफेसर थे पटना में, IIT पटना में, अभी IIT में वो एक डायरेक्टर बन गए। तो वो अभी दिए थे स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में, तो बहुत लोग विरोध किए, ये क्या है, इसमें क्यों, मतलब इसके लिए कारण ऐसे क्यों बताएं, समझ रहे हैं। तो बहुत लोग मानते नहीं हैं, फिर इसमें धर्म को क्यों घुसा रहे हैं, रिलीजन, देयर इज रिलेशन है, आप ऐसा अलग नहीं कर सकते। प्रकृति भगवान का निर्देश से चल रहा है, आप प्रकृति का नियम को उल्लंघन करेंगे, प्रकृति को कष्ट देंगे, तो वो रिएक्ट करेगा, वो कंपल्सरी रिएक्ट करेगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, रिएक्शन आएगा ही आएगा। तो जिसमें आज प्रभुपाद लीलामृत में भी बोल रहा था मैं, तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में जाके वहाँ पे जब स्टार्ट किए थे भक्ति का प्रचार, स्टार्टिंग में लोग आ रहे थे, नए नए थे, सब हिप्पी थे, और वही समय वियतनाम का वॉर चल रहा था। तो अमेरिका जो है सबको बोल रहा है चलो वियतनाम पे युद्ध करना है, सब लोग को पुल करो, फोर्स कर रहा था। एक्चुअली कुछ कुछ लोग फोर्सफुली आर्मी में ड्राफ्ट कर रहा था। तो बहुत लोग उस जनरेशन के लोग नहीं चाहते थे युद्ध, शांति चाहते थे, पीस चाहते थे, वो कुछ पीस मूवमेंट चल रहा था, उसका कुछ लोग थे उधर क्लास में। तो जब प्रभुपाद ने बोला, एग्जाम्पल दिया ये भगवत गीता का कृष्ण और अर्जुन का, कि कृष्ण अर्जुन को बोला युद्ध करने के लिए, अर्जुन बोला अरे हमारा सब अपने लोग है, इसको मारने का क्या दरकार है, हमको राज्य का उतना लोभ नहीं है, ऐसे अर्जुन बोलता है, मेरे को उतना राज्य का लोभ नहीं कि मेरे को राजा बनना है, इसके लिए हम अपने लोग को मारेंगे, हमारे बंधु आत्मीय स्वजन को मारेंगे, तो ठीक नहीं है। अगर तो कोई आदमी देख के सुन के सोच सकता है अरे अर्जुन तो भालो बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा चीज़ बोल रहा है, ये कृष्ण क्यों उनको प्रेरणा दे रहा है युद्ध करने के लिए, लोग हाँ ऐसा बोलते भी है। तो ये सुन के वो लोग बोले, पूछे प्रभुपाद को, तो उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इधर भी अमेरिका का सरकार जो है प्रेरणा दे रहा है युद्ध करने के लिए, और ये लोग नहीं चाहते युद्ध करने के लिए। तो क्या प्रभुपाद भी क्या बोलना चाहते हैं कि वियतनाम युद्ध को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? तो वो पूछते प्रभुपाद, स्वामी जी आप क्या वियतनाम युद्ध को सपोर्ट करते हो, बात कर रहे हैं? तो प्रभुपाद बोले ना, वियतनाम और युद्ध, जो वियतनाम युद्ध चल रहा, कुरुक्षेत्र में युद्ध चला है, वो एक नहीं है, डिफरेंट है। कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चलता है, कृष्ण स्वयं अर्जुन को बोले धर्म का स्थापना करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, है ना। कुरुक्षेत्र में युद्ध क्यों हो रहा है? धर्म का स्थापना करने के लिए। धार्मिक राजा रहेगा तो बाद में धर्म पालन चलेगा, फिर गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? धर्म पालन करना।
धार्मिक जीवन जीना यही लक्ष्य है, तब जीवन का सक्सेसफुल होगा। नहीं तो अगर राजा ही यथा राजा तथा प्रजा, यदि राजा ही धार्मिक नहीं है तो बाकी सब प्रजा भी अधार्मिक होते चले जाएंगे, पहले मास मिसगाइडेंस मिसलीडिंग हो जाएगा लाइफ का। तो इसीलिए एक प्रॉपर लीडर होना चाहिए, तो वहाँ पे युद्ध किया है। बट वो वाला वियतनाम युद्ध जो है ये कार्मिक रिएक्शन है। कार्मिक रिएक्शन मतलब उन्हीं কিছু কর্মে ওনার কর্মের ফল উনি ভোগ করছে, আমি এইসব জিনিসকে কোনো সাপোর্ট করছি না। এটা আর কুরুক্ষেত্রের सेम, মানে भगवान स्वयं दाঁড়িয়ে থাকে, भगवान আছে धर्मपिता। सब लोग सोचते हैं ये धर्म वो धर्म है, बट धर्म क्या है? तो भगवान बोलते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान बोलते ওটা হচ্ছে धर्म। भगवान आया है धर्म को स्थापना, तो स्थापना करके ही जाएंगे। तो इसलिए जब देखा है कि चलो अभी युधिष्ठिर को राजा हो गया, माय जॉब इज डन, तो फिर वो भगवता वापस चले गए। तो एक एक समय एक एक कभी कभी जैसे भगवान राम के रूप में आए तो वो स्वयं राजा होके धर्म के अनुसार कैसे राज्य चलाना है वो सिखाए। जब कृष्ण आया तो अर्जुन के माध्यम से, युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म का स्थापना की। तो कभी कभी वो अपना स्वयं करते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से कराते हैं। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को बोला देखो आप जो सोच रहे हैं ना ये ठीक नहीं है, आप तो सिर्फ अपना बारे में सोच रहे, मेरे आत्म सोचो ये वो, मगर क्या है हम पहले भी बोला था, तो जैसे जो भी हो आत्मीय सजन है, अपना फैमिली मेम्बर भी हो, अगर वो गलत कर रहा है तो आपको दंड देना ही पड़ेगा। आप क्षत्रिय हो, अगर आप जैसे कोर्ट में ये जज है और उसका बेटा ही मर्डर किया है और उसको जजमेंट देना है तो उसको देना है, सेंटेंस देना है। ऐसा नहीं बोल सकता है ये मेरा बेटा है मैं कैसे उसको डेथ सेंटेंस दे सकता हूँ, नहीं। फिर आप जज की सीट में क्यों बैठे हैं? तो आप क्षत्रिय है, अर्जुन क्षत्रिय है, आप क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म का रक्षा करना। तो कोई अगर अधर्म पद में जा रहा है, कोई भी हो, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, उनसे युद्ध करके खत्म करना पड़ेगा, धर्म की स्थापना करना। तो इसलिए यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है कि हम लॉ ऑफ नेचर को रेस्पेक्ट करें, तब नेचर भी हमको उसी तरह से हमारे साथ व्यवहार करेगा। तो नेक्स्ट कहाँ पे थे हम लोग? মূর্খ গৃহ মেদিয়া প্রকৃতির অনিত্যতা 52 में है। ओके, অনিত্যতা इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर को, 2-3 पैराग्राफ है, इसको कंप्लीट करके एंड कर देते हैं, फिर बाद में भी कुछ क्वेश्चन অনিত্যতা এবং যে শরীরটিকে কেন্দ্র করে তাদের এত আয়োজন, তার অসারত্ব সম্বন্ধে কেবল অজ্ঞ নয়, তাদের দৈনন্দিন জীবনে তাদের সামনে যা ঘটে চলেছে সেই বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অন্ধ। যদিও তারা দেখে যে তাদের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশীর মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বুঝতে চেষ্টা করে না যে তাদের পরিবারের অন্য সমস্ত সদস্যেরও মৃত্যু হবে। কখনো কখনো তারা চিন্তা করে এবং বুঝতেও পারে যে একদিন না একদিন তাদের পরিবারের মৃত্যু হবে এবং তাদের নিজেদেরও মৃত্যু হবে। তারা জানতে পারে যে তাদের পারিবারিক, সাম্প্রদায়িক, সামাজিক, জাতীয় এবং এই ধরনের সব রকমের জীবন একটা বুদ্বুদের মতো অস্থায়ী এবং তা অচিরেই মিলিয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী আয়োজনে তারা উন্মাদের মতো আসক্ত হয়ে পড়ে এবং যথার্থ তত্ত্ব অনুসন্ধানে কোনো রকম প্রচেষ্টাই করে না। তাদের মৃত্যুর পর তারা যে কোথায় যাবে সেই সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই। তাদের পরিবার, সমাজ বা জাতির ক্ষণস্থায়ী আয়োজনগুলির কাজে তারা কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু তারা কখনোই তাদের জীবনের
যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে না। यस, तो ये भक्ति लाइफ माने स्पिरिचुअल लाइफ माने फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर, जैसे कोई अभी बच्चा पढ़ रहा है तो कोई पढ़ाई नहीं करता है, स्कूल में भर्ती हो गया, कॉलेज में भर्ती हो गया, पढ़ाई नहीं कर रहा है, खेल रहा है, बस टाइम पास कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। बट टीचर जानता है कि वो उसका फ्यूचर ब्लैंक है ना। टीचर वो बच्चा समझ नहीं आ रहा है, बच्चा सोच रहा है उनको पसंद नहीं है पढ़ाई वढ़ाई, उनको एग्ज़ाम लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो उसको खेलना कूदना अच्छा लगता है। बट टीचर समझ रहा है कि उसका फ्यूचर ब्लैंक है। तो वैसे ही भक्ति लाइफ मतलब आपका जीवन मृत्यु से एंड नहीं होता है, उसके बाद में भी आत्मा का जर्नी चलता है। तो मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे उसका भी डिपेंड करता है आप इस जीवन में कैसे जीवन जिया है। जैसे आपका कॉलेज के बाद जॉब क्या मिलता है डिपेंड करेगा आपको कॉलेज में कैसे जीवन आप जिया है। तो आप क्या सोच रहे हैं ये लॉजिक इधर ही खत्म हो जाएगा? हाँ? ये लॉजिक ये जीवन एंड होते से खत्म हो जाता है, हम खत्म हो जाते हैं? नहीं, शरीर खत्म हो जाता है, ये टेम्पोररी है, मगर हम परमानेंट है। आत्मा का मृत्यु नहीं है, राइट। यही शिक्षा कृष्ण अर्जुन को बोलता है, अर्जुन तुम इतना टेंशन ले लो, आत्मा तो मृत्यु नहीं है, कोई मरेगा नहीं। आप किसी को एक्चुअली आत्मा को कोई किसी आत्मा को तो आप मार नहीं सकते, राइट। तो कृष्ण क्या काम कर रहे हैं, जैसे बोला ना कंपनी का काम के लिए काम करने के लिए एक व्हीकल देता है, जो व्हीकल वो कंपनी के काम के लिए दिया है व्हीकल को। जैसे आजकल सपोज कंपनी के सॉफ्टवेयर वालों को लैपटॉप देते हैं घर से वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, बट आजकल तो लोग अपने काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते कि उसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लेके रखता है। आप कुछ भी अलग काम करेगा उसको पता चल जाएगा बॉस को। बट जो भी है, जैसे बॉस को पता चल गया तो जो भी आपको फैसिलिटी दिया है वो आप कंपनी का खर्च छोड़ के अपना दूसरा काम में लगा दिया, एंजॉय कर रहा है, तो तुरंत वो आपसे वो फैसिलिटी को छीन लेगा। तो भगवान भी मनुष्य का शरीर दिया है एक व्हीकल है, वाहन है हमारा ये जर्नी में, एक लक्ष्य उसको पहुंचने के लिए। बट वो हम उसके लिए यूज नहीं किए, हम मस्ती कर रहे, हमारा मिल गया शरीर, मिल गया गाड़ी, मिल गया, जैसे चाहे वैसे एंजॉय करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो गाड़ी को छीन लेंगे। तो भगवान अर्जुन को बोला ये लोग को सबको गाड़ी दिया मैंने, और वो लोग मेरे पास नहीं आ रहे गाड़ी लेके, इधर उधर जा रहे, तो इसलिए आप उस पर गाड़ी छीन लो। हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ लॉस नहीं होगा, थोड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसके बाद फिर वो रियलाइज करेगा अरे मैं तो गलती किया, तो फिर और एक चांस देंगे। उस समय अगर सही से यूटिलाइज करेंगे तो फिर उनको, जैसे आप फेल हो जाते एग्ज़ाम, बाद में रियलाइज करते हैं अरे मैं तो पढ़ना था, अभी तो मेरे फ्रेंड सब लोग तो चला गया, पास हो गया, और जो अच्छा जॉब मिल गया, और मेरा तो एग्ज़ाम फेल हो गया। तो फिर वो क्या करता है, फिर नेक्स्ट टाइम अगर रियलाइज़ करता है तो पढ़ाई करके पास करता है। तो वैसे ही अभी भगवान अर्जुन को बोला आत्मा को तो कुछ होगा नहीं, बस हम व्हीकल छीन ले रहे हैं उनसे, है ना। बाद में फिर जब फिर मिलेगा उसको कुछ गैप के बाद फिर से मिलेगा और एक शरीर और एक व्हीकल मिलेगा, फिर और एक चांस मिलेगा, ठीक है। अगर अभी इसको बहुत बार जैसे व्हीकल को बहुत मिसयूज़ किया तो उतना जल्दी फिर से व्हीकल नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम गैप रहेगा। उस समय तो उसको बिना व्हीकल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना पड़ेगा या उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर बहुत मिसयूज़ किया कोई अधोगच्छन्ति तामसा, उसको कोई पशु का शरीर मिल जाएगा, पशु के शरीर में वो भगवत धाम नहीं जा सकता, तो फिर उसको कुछ समय पशु के शरीर में पनिशमेंट मिलेगा, फिर कुछ समय के बाद फिर से मिलेगा मनुष्य। कितना मिसयूज़ किया उसके हिसाब से उतना टाइम उसको पशु शरीर मिलेगा। उसके बाद फिर से उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा। मनुष्य का शरीर मिलना मतलब एक अपॉर्चुनिटी है हमको स्पिरिचुअल लाइफ लीड करने का और वापस भगवान के पास जाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे एक व्यक्ति जैसे सिर्फ इस जीवन के बारे में सोच रहा है, इस जीवन में मैं कैसे आनंद से रहूँ, बट मृत्यु एनी टाइम आज भी वो आपको पहले बोल के नहीं आएगा इस टाइम पे मैं आने वाला हूँ, अब तब तक रेडी कर लीजिए वो तो एनी टाइम। तो उसके बाद क्या, तो इसलिए ये चैप्टर का नाम है आर्ट ऑफ
डाइंग। बाहर में लोग सिखाएंगे आर्ट ऑफ लिविंग, हम लोग सिखाते आर्ट ऑफ डाइंग। क्योंकि कब तक जिए रहेंगे वो भी गारंटी नहीं है, लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए कभी भी मृत्यु का नोटिस आ जाए, अननोटिस भी मृत्यु हो जाए, आपको लॉस ना हो। तो आपको कैसे फेस करना चाहिए मृत्यु को फेस करने का? जैसे सडन एग्जाम, सडन एग्जाम, जैसे कोई जो लेजी स्टूडेंट बोलते हैं ठीक है अभी तो बहुत समय एग्जाम, फाइनल एग्जाम तो अभी 6 मास है, पहले दिन पढ़ लेंगे, एग्जाम का पहले दिन हम रात पर पढ़ लेंगे, अभी से पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अभी एंजॉय करते हैं। बट लाइफ का एग्जाम ऐसा है कि सडनली आएगा, सरप्राइज टेस्ट। बट सरप्राइज टेस्ट वही पास कर सकता है जो हर समय प्रिपेयर्ड रहेगा, है ना। जो स्टूडेंट प्रिपेयर्ड रहता है एग्जाम, मतलब पढ़ाई का प्रिपरेशन हर समय उसका रहता है, उसको कभी भी एग्जाम दे दो वो पास हो जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं होती। ऐसे ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हम नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ, ये मृत्यु के बाद हम नेक्स्ट कहाँ जाएंगे उसके लिए प्रिपरेशन लेके रखेंगे हम, तो फिर हमको टेंशन नहीं है, राइट। यही महाराज परीक्षित, ये पूरा भागवत का चर्चा शुरू होता है, भागवतम से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता है। ये भागवतम शुरू होता है जब डेथ नोटिस मिलता है परीक्षित महाराज के, आप 7 दिन के बाद आपका मृत्यु होगा, तो तुरंत परीक्षित महाराज कोई टेंशन नहीं लेते, वो सुखदेव गोस्वामी के पास के बोलते तो मेरे को क्या करना है बोलिए, 7 दिन मैं करूँगा। तो फिर सुखदेव गोस्वामी 7 दिन भागवत का कथा सुनाते, राइट। वो 7 दिन में भागवत कथा सुन के भगवत चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड थे पहले से, उनको कोई शॉक नहीं मिला डेथ नोटिस मिलते, कोई दुख भी नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रिपेयर्ड रहता है ना स्टूडेंट, उसको जैसे एग्जाम का नोटिस मिलता है वो खुशी होता है उसको, क्योंकि उसको पता है नेक्स्ट तो एग्जाम पास करूँगा तो, और हायर मेरा कोई लेवल पे जाऊँगा मैं, क्लास में हो कॉलेज में नहीं हो, राइट, तो खुशी फील होता है। तो इसी तरह से जो व्यक्ति प्रिपेयर्ड है डेथ के लिए, तो भगवत गीता जो है डेथ जो है एग्जामिनेशन है, वो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपको कराता है। ओके, नेक्स्ट और 1 2 3 पैराग्राफ है, इसको करके हम लोग आज एंड करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा सबको सुनाई देगा। In public people, हाँ, like arrange with courage, we meet and sit down together with some unknown friend and become members of the same people for a short time. But in due course, we separate, never to meet again. Similarly, in a long sojourn of life, we get a temporary sitting accommodation in a so-called family, country or society. But when the time is up, we are unwillingly separated from one another, never to meet again. There are so many questions relevant to our temporary arrangement in life and our friends. In these temporary arrangements, but a man who is the Grahmedi never inquires about things of the permanent nature. We are all busy making permanent plans in various degrees of leadership, without knowing the permanent nature of the things as they are. Sripada Shankaracharya, who especially strove to remove this ignorance in society and who advocated the cult of spiritual knowledge in regard to the all-pervading impersonal Brahman, said that despair children are engaged in the praying, young boys are engaged in so-called love affairs with the young girls, and the old are seriously thoughtful about adjusting a baffled life of struggle. But alas, no one is prepared to inquire relevantly into the science of Brahman, the absolute truth. तो शिवा शंकराचार्य जी बोले कि लोग व्यस्त थे बचपन में खेलने के लिए, यौवन अवस्था में
तो पुरुष स्त्री का संग करने के लिए स्त्री पुरुष संग करे, और जो वयस्क हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तो कैसे स्ट्रगल करे, बहुत सारे स्ट्रगल्स है जीवन में, उसके बारे में कोई भगवान के बारे में, ब्राह्मण के बारे में, परम सत्य के बारे में जिज्ञासा कोई कर नहीं, यही उचित होगा। यस, इसलिए ना एक्चुअली ये जिज्ञासा नहीं करते, इसलिए वो लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते। जैसे आपको पता है, जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, है ना, तो आपके साथ कुछ पैसेंजर रहते हैं, हाँ, और जब एक उसका स्टेशन आ जाता है वो उतर जाता है, और आप लोगों को कोई दुख होता है? नहीं होता है, कि आपको पहले से ही पता है कि वो एक स्टेशन में, वो स्टेशन में उतरने वाला है। तो उसके वैसे ही हम अब फैमिली में कोई ना कोई सडनली किसी न किसी का डेथ हो जाएगा, तो हम पहले से प्रिपेयर्ड है कि डेथ तो होने वाला है, ये परमानेंट नहीं। मगर जितना देर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उस समय तो उनसे अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, और कोई एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, सब फ्रेंडशिप रहते हैं, सब कुछ सब कुछ है। बट हमको भी जीवन में ऐसे रहना चाहिए, और हम लोग प्रिपेयर रहना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, यस, नेक्स्ट श्री सुखदेव गोस्वामी। মহারাজ পরীক্ষিত যখন সুখদেব গোস্বামীর কাছে জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন, তখন সুখদেব গোস্বামী তাকে উপদেশ করেন, তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা ভগবান ঈশ্বর হরি ঈশ্বর হরি সুতর্ক পৃথিবীস্তবশ্য সত্যস্যে সর্বকাম। এই ভারত, প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা, শ্রবণ করা, কীর্তন করা এবং ধ্যান করা। তার নাম হরি, কারণ তিনি কেবল জীবকে তার বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারেন। আমরা যদি আমাদের বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে চাই, তাহলে সেই পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যথার্থভাবে অনুসন্ধান করতে হবে, যাতে তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাদের যথার্থ মুক্তি দান করেন। यस, ये जो जन्म मृत्यु जो चक्र है, इसमें ऑलरेडी हम बंदी हो गए। हाँ, फिर मरेंगे, फिर और एक शरीर लेंगे, तो उस शरीर में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि थक गई। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, कृष्ण गीता में बोलते, यही जगत में क्या है, ये चार दुख है, जन्म मृत्यु जरा, जरा माने वृद्ध, ओल्ड एज, और व्याधि डिजीज। ये कंफर्म बोल दिए, आप कितना भी ट्राई करेंगे ये चार चीज़ को आप चेंज, क्योंकि सृष्टि में इंक्लूडेड है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जब मैन्युफैक्चर जब किए थे भगवान, तभी बोल दिए, कभी बोले नहीं इस जगत में आपको सुख मिलेगा। ये क्या बोले, दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत जो है दो चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स, एक दुखालय, जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, दुखालय में दुखी मिलेगा, ऐसे ही दुखालय अशाश्वतम, अशाश्वत, ये परमानेंट प्लेस नहीं रहने का, हाँ टेम्पररी प्लेस। तो इसलिए इधर में आप सुखी रहने का, सुख पाने का कोशिश मत करिए। आप मृत्यु के बाद में इस जगत में ना आके मुक्ति पाके भगवान के पास जाके उधर ही सुखी रह सकते हैं। तो ये भगवान एक ही आपको मुक्त कर सकते हैं ये बंधन से। तो इसके लिए आपको भगवान के बारे में जानना जरूरी है। आप किधर भगवान के पास जाना है तो पहले भगवान के बारे में जानना चाहिए ना, भगवान क्या करते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का धाम क्या है, सब डिटेल्स भागवत में दिया हुआ है। ये सब चीज़ें भागवत में जो लोग भागवतम को लिया है, तो भागवतम में स्वयं कृष्ण, राइट, कृष्ण का गुण रूप लीला महिमा सब अभिन्न है। तो आपको कृष्ण के बारे में संपूर्ण ज्ञान भागवतम में है। इतना बुक्स है, इसलिए कार्टून वर्ग के बुक्स है, जो बुक्स है भागवतम, इतना स्कंद है, 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है, तो ऐसे कुछ नहीं है, पूरा संपूर्ण ज्ञान है भगवान के बारे में। भगवत गीता में तो भगवान ने लॉस बताया, शिक्षा दिया, टीचिंग्स दिया, बट भगवान के बारे में, भगवान की लीला के बारे में
और भगवान के भक्तों का लीला के बारे में, भगवान के विभिन्न अवतार के बारे में, वो सब श्रीमद् भागवत में। चिन्मय जगत कैसा रहता है उसका वर्णन है, हम तो देखा नहीं, राइट, मगर उसका उसमें क्या है, कहाँ क्या रहता है उसमें, जो लोग गए हैं वो लोग वर्णना किए। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं कि तस्मात् स भारत सर्वात्मा, तस्मात् मीन्स देयरफॉर, ठीक है, तस्मात् मीन्स देयरफॉर, हे भारत मैंने भारतवंशी जो भारत सर्वात्मा, अपनी क्या करना चाहिए, भगवान ईश्वर जो हरि है उनका ही बारे में सुनना चाहिए, उनका ही कीर्ति करना चाहिए। तो अभी लोग क्या अलग अलग चीज़ के बारे में सुनते, अलग अलग चीज़ का बारे में चर्चा करते। आपको क्या करना है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के विषय चर्चा करना है। तो हम लोग इधर जो चर्चा कर रहे हैं आज भी, ये क्या है, भगवान ने जो शिक्षा दिया है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका मूल्य क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो ये अगर हम कर पाए तब भगवान को जान पाए, तो जैसे आपको कुछ भी करना है तो पहले उसके इन्फॉर्मेशन तो जानना चाहिए ना। आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ तो नॉलेज रहना चाहिए वो कॉलेज के बारे में। एक कोई कोर्स में आप भर्ती होना चाहते हो, कोर्स के बारे में तो जानना चाहिए ना। तो देखो कोर्स में कैसे भर्ती हो गया, जितना विषय के बारे में जानेंगे उतना आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप उस पर जाना चाहेंगे, राइट। वैसे ही है ना, नहीं तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्यों चलता है, तो एडवर्टाइजिंग क्यों करता है कि लोगों को पता है कि इसको बार बार दिखाएंगे, ये खरीदो खरीदो खरीदो, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो बार बार बोलेगा तो आदमी का माइंड बैठ जाता है, नहीं को खरीदना ही है, समझ रहे। तो जितना ज्ञान हम किसी चीज़ के बारे में जानते तो अगर वो अच्छा चीज़ है तो हम आकर्षित होते हैं। तो इधर इसलिए बोल रहे हैं सबसे आकर्षणीय व्यक्ति, सर्व आकर्षित व्यक्ति कृष्ण, कृष्ण सबसे आकर्षणीय व्यक्ति। तो बस उनके बारे में जानना जरूरी है, ये एफर्ट हमको करना पड़ेगा। बस हम यदि कृष्ण के बारे में जान लिए, हरि के बारे में, तो हम ऑटोमेटिकली उनके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। उसके बाद में भगवतम जाने की हमारा इच्छा हो जाएगा। और ये भक्ति जो वॉलेंटरी प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि फोर्सफुली कर सकते, समझे। तो मगर इसके लिए स्टार्टिंग में, जैसे कि स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको वैल्यू पता नहीं, एजुकेशन पता नहीं, स्कूल जाने का उनको इंटरेस्ट नहीं है, बट जब पढ़ेगा एक दिन जो वैल्यू समझेगा, अरे मेरे को पढ़ाई करने से मेरा फ्यूचर करियर अच्छा रहेगा, तो उस दिन से वो खुद से ही पढ़ाई करेगा। तब तक थोड़ा सा पुश करना पड़ता है ना, उस लेवल तक। तो हमको भक्ति में भी स्टार्टिंग में अब पता नहीं है वैल्यू क्या स्पिरिचुअल लाइफ का, हमारा सिचुएशन ऐसा ही है, भगवान के बारे में क्यों जानना है हमको पता नहीं है, भगवान का वैल्यू पता नहीं है, जीवन का वैल्यू पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, इंपॉर्टेंस पता नहीं इसका। तो इसलिए पहले बोलते आप बस सुनो, श्रवणम इज द फर्स्ट अंग। अब सुनो पहले क्या भगवान बोलते हैं, भगवान के बारे में पहले ज्ञान तो लो, उसके बाद में डिसाइड करो आप खुद ही कि ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है ये अच्छा चीज़ है नहीं, आप करना चाहते हैं नहीं। तो इसलिए पहले सुनना इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट आज का पैराग्राफ ये पढ़ के हम डिस्कशन एंड करते हैं। Sri Sukadeva Goswami has particularly used 4 words in regard to the absolute personality of God and it. These words distinguish the absolute person or Param Brahman from other persons who are qualitatively one with him. The absolute personality of Godhead is addressed as Sarvatma or all-pervading because no one is aloof from him, although not everyone has this realization. The personality of Godhead by his plenary representation resides in everyone's heart as Paramatma, the super soul, along with each individual soul. Therefore, every individual soul has an intimate relationship with him. Forgetfulness of this eternally existing intimate relationship with him is the cause of conditional life since time immemorial.
but because he is Bhagwan or the Supreme Personality, he can at once reciprocate the responsive call of a devotee. Moreover, because he is the perfect person, his beauty, opulence, fame, strength, knowledge and renunciation are all unlimited source of transcendental bliss for the individual soul. The individual soul becomes attracted by all these different opulences when they are imperfectly represented by other conditioned souls, but the individual soul is not satisfied by such imperfect representations, and therefore he perpetually seeks the perfect one. The personality of Godhead's beauty has no comparison, nor do his knowledge and renunciation, but above all, he is Ishwar, or the Supreme Controller. We are at present being controlled by the police action of this great king. This police control is imposed upon us because of our disobedience of laws, but because the Lord is Hari, he is able to cause the disappearances of our conditional life by giving us full freedom in spiritual existence. It is therefore the duty of every man to relevant inquiries about him and thus go back to the Godhead. यस ओके, तो इसलिए हमको भगवान के बारे में जानना है, तो हम भगवान के बारे में जानेंगे तो वापस जा सकते हैं। अभी जो है हम पुलिस, जैसे पुलिस के पास कस्टडी में कौन रहता है? क्रिमिनल रहता है। तो इसलिए यहाँ पे दुख है क्योंकि ये जेल है, राइट? ये जगत जो है कारागार है। तो अभी हम लोग कुछ कारागार में हैं, तो इससे हमको फ्रीडम चाहिए, तो फिर हमको तो हम अच्छा व्यक्ति बन जाएंगे तो हमको फ्रीडम मिल जाएगी। जैसे अच्छा शुद्ध बन जाएंगे हम, तो हमको फिर वापस बैक टू गॉडहेड जाने का मौका मिलेगा। ओके, ठीक है, তাহলে আজকে এখানে রাখবো। অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে আজকে আপনি আপনার সময় বের করে এখানে এসেছেন। श्री प्रभुपाद की जय।